بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والحمد لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء محمد المصطفى وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر آصف علوی نامی رافضی 2 ٹکے کے لونڈے شخص نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے بارے میں بہت زیادہ نازیبا الفاظ کہے. انتظامیہ کو بہت ہی پیار سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ نے FIR تو کاٹ رہی ہے اس کے خلاف، اب اس کو اور جن لوگوں نے انتظامات کیے اس محفل کے، ان سب کو گرفتار کرو، اور پھر وہ اس آصف علوی کو کہو کوئے مار کر اس کی لیٹریشن کرنے کے بعد کہ توبہ کر ان جملوں سے جو اس نے کہے، نیز دوسرے جو جملے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو اس نے نازیبہ جملے کہے اپنی پچھلی تقریروں میں، اس سے اور دوسری جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، تو ان سب سے اس سے توبہ کر رہی جائے. یہ انتظامیہ کو پیار سے سمجھایا جا رہا ہے اہل سنت والجماعہ کی جانب سے. اور اگر وہ شخص توبہ نہیں کرتا، آصف علوی اگر وہ توبہ نہیں کرتا، تو اس کو پابند سلاسل کر جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو گستاخی کرے، نازیبا الفاظ استعمال کرے اور وہ کفریات میں آتے ہیں، اس کا قائل کافر ہو جاتا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں جو شرعاً حکم ہے وہ اس آصف علوی پر جاری کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے ناپاک وجود کو پاکستان کی پاک سرزمین سے ختم کر دیا جائے. یہ بہت ہی دوبارہ میں کہہ رہا ہوں پیار سے انتظامیہ کو اہل سنت والجماعہ والے سمجھا رہے ہیں. پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 شہزادیوں حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں نازیبا الفاظ رافضیوں، بدعتواروں، 2 ٹکے کے لونڈوں کی جانب سے استعمال کیے گئے تھے، اور انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا. تو آپ کو پیار سے جو بات سمجھی جا رہی نا انتظامیہ صاحبہ پاکستان کی، تو آپ سمجھ جائیں یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور ملک کے جو حالات ہیں ان کے لیے بہتر ہے. آپ رافضیوں کا ساتھ دے کر ملک کا امن خراب نہ کرو. ملک میں اہل سنت والجماعہ والے امن چاہتے ہیں، تم ملک کا امن خراب کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ تمہیں پیار سے سمجھایا جا رہا ہے.
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरे असहाब को गाली दी तो उस पर अल्लाह ताला की भी लानत है, उस पर फरिश्तों की भी लानत है और उस पर तमाम लोगों की भी लानत है। और अल्लाह ताला ने सहाबा किराम के बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी है और ये अल्लाह ताला से राज़ी है। नीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीगर सहाबा के बारे में भी अल्लाह ताला ने यही इरशाद फरमाया है। तो इतनी अजीम हस्तियों के ख़िलाफ़ ये बोल रहे हैं, इस तरह की बकवासात कर रहे हैं, तो आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं अभी कोई शियों के बारे में, राफ़िज़ियों के बारे में, किरदारों के बारे में वो जैसे सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया जाता है मुन्ना, वो मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। वो इस वजह से कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया को मैं समझा रहा, तुम समझ जाओ, ठीक है, और उसको गिरफ्तार करो, जो मैंने हुक्म बताया शरई तौर पर उस पर अमल करो। वरना तुम जानते हो अच्छी तरह कि अहल सुन्नत वल जमात के नौजवानों का खून किस तरह गर्म है, तो वो फिर अहल सुन्नत वल जमात के नौजवान फिर अपने तरीके के साथ काम करेंगे। तो फिर ये तुम ना कहना कि यूं हो गया, फलां हो गया, ढिमकान हो गया। तो ये आज बुध का दिन है, कल जुमेरात का दिन है। FIR तो रात को कट गई थी उसके खिलाफ, आसिफ अलवी के खिलाफ, ठीक है, और उसकी इंतज़ामिया जो महफिल की थी उसके खिलाफ। अब उसको अमल में लाओ और गिरफ्तार करके तौबा करवाओ उससे, या जो शरई तौर पर हुक्म है उस पर वो लागू हो जाए। 295 अपना जो शरई तौर पर हुक्म है उस पर वो लागू किया जाए। तो ये 2 दिन हैं। अगर कल तक तुमने उसको गिरफ्तार करके कैफर किरदार का निशाना न बनाया, या गिरफ्तार कर और फिर कानूनी अमल जो है अगर उसमें दाखिल हो जाए तो एक और बात है, लेकिन अगर उसको तुमने गिरफ्तार न किया, ठीक है, तो फिर जो जुम्मा वाले दिन होगा, मेरा लहजा, मेरे अल्फाज वो फिर और तरीके के साथ होंगे। आज जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े प्यार से आपको समझाएं। दोबारा आखिर में कह रहा हूँ कि आप आसिफ अलवी को, शिया राफ़िज़ी 2 टक्के के लोंडे को गिरफ्तार करो, उसके ख़िलाफ़ जो इस्लाम के मुताबिक सज़ा है वो जारी करो और उसको लगाओ और तौबा करो, या जो कुफ्रियात के बारे में शरई हुक्म है वो जारी कर उसको हद लगाओ, ताज़ीर या जिस माना में मतलब सज़ा जो है उसको दो। उम्मीद है कि इंतज़ामिया ये प्यार से कही हुई बात समझ लेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। पाकिस्तान का अमन अमान ख़राब मत करो, अहल सुन्नत वल जमा को ललकाओ मत। अगर अहल सुन्नत वल जमा वाले खड़े हो गए ना, हमारे खून खोल तो अब भी हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ अगर वो दूसरा तरीका हमने इख्तियार कर लिया तो फिर तुमसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे गुस्सा जो लगा हुआ है ना, वो तुम नहीं जानते। तो अभी मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो दिल में आ कह रहा है, लेकिन अगर तुमने जुमेरात तक, कल के दिन तक उसको गिरफ्तार करके उसके ख़िलाफ़ अमल न किया, कार्रवाई न की, तो फिर लबो लाजा भी शियों और राफ़िज़ियों के बारे में वो इस्तेमाल करूँगा मैं जो करना चाहिए, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि अहल सुन्नत वल जमा वाले इसके साथ अब क्या करेंगे। फिर आपने जो रोकना हो तो रोक लेना, ठीक है, जो मेरे ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई करनी हो तो वो कर लेना। तुम्हारे ना ये 2 टक्कों की खातिर हम बिकने वाले नहीं हैं।
चलें बहरहाल मैं आगे कोई बात नहीं करना चाहता, बस जो तुम्हें प्यार से समझा दिया वो तुम समझ लो, खुसूसन इस्लामाबाद के इंतज़ामिया और अहल सुन्नत वल जमा वाले जितने भी लोग हैं, वो आप इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करें अपने अपने शहरों में जितना भी आपसे हो सकता है, और कानूनी कार्रवाई आप अमल में लें। जिनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फरमाई है तो वो इसके ख़िलाफ़ आसिफ़ अलवी गुस्ताख के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करें और कैफ़े किरदार तक इसको पहुँचाने में उलमाए अहले सुन्नत वल जमा की का साथ दें और उनके मुआविन बने आप। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी और अपने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महब्बत अता फरमाए। नीस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ख़ातमुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अस्हाब की और आपके अहले बैत की अल्लाह ताला हमें महब्बत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर हमेशा कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमा की मदद फरमाए और इनको ग़लबा अता फरमाए। ये इंतज़ामिया मेरी बात को ऐसे न ले, ठीक है, प्यार से आपको मैंने समझा दिया तो आप समझो, वरना अच्छा नहीं होगा। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।